Good evening, students, and once again, welcome in the world of business. Uh, as all of you know, that second chapter is going on, that is Principles of Management. It means this video is meant for students of business studies, class 12th. First principle I have already explained to you, that is division of work. Today I am going to explain you authority and responsibility and discipline principle. So, what is the opinion of Henry Fayol regarding authority and responsibility? According to Henry Fayol, there should be a good balance between authority and responsibility. Means authority should be commensurate with responsibility. क्या कहते हैं हेनरी फ्योल कि हेनरी फ्योल has given this principle for effective management, efficient management, for efficient functioning and smooth functioning of the organization. So what is the role of this authority and responsibility? A superior, if giving, superior is giving authority or responsibility, you say responsibility to his subordinate, so it is necessary that he has to give authority also. Because if responsibility has been given and authority has not been given, so subordinate will not be able to complete that task, that assignment, that responsibility, will not be able to fulfill that responsibility. Let me explain what is authority and what is responsibility. Authority is the right of a person to give orders. So this superior is having powers, having right to assign certain tasks, entrust certain tasks, certain responsibility to subordinate. So it is the responsibility of this superior to grant necessary authority also to the subordinate. मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. Suppose I need rupees 5,000 and I ask one of my student कि ये लो बेटा, ये मेरा डेबिट कार्ड ले लो और जाओ बैंक से, ये बैंक के एटीएम से 5,000 रुपये निकाल के ले आओ, ये मेरा कार्ड है. तो क्या वो काम पूरा कर पाएगा? नहीं पूरा कर पाएगा. क्यों नहीं पूरा कर पाएगा? क्योंकि मैंने उसे पिन नहीं दिया है. एटीएम कार्ड जब लगाएगा तो पिन मांगेगा ना, और पिन अगर नहीं है तो वो उस काम को पूरा नहीं कर पाएगा. तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी पैसा निकालने की, हमने कार्ड भी दिया, लेकिन हमने पिन नहीं बताया, तो वो काम को ये सबऑर्डिनेट कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा. यही कहने का मतलब है कि इफ किसी ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में अगर समझें तो हमने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर किया कि ये प्रोडक्शन इतना करना है, इतने यूनिट्स कुछ किसी भी प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करना है, मगर हमने ये आदेश उसको नहीं दिया, अथॉरिटी नहीं दी कि तुम स्टोर से सामान निकाल लो, तो फिर वो कैसे प्रोड्यूस करेगा? नहीं कर सकता है. तो इसका मतलब क्या है कि देयर शुड बी ए गुड बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड responsibility. If authority, commensurate authority has not been given, then responsibility cannot be fulfilled.
So if this principle is followed in the organization, what will be its impact या good effects? इसके good effects क्या होंगे? It prevents misuse of authority. दोनों बातें हैं. अगर हमने ज्यादा, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, मैंने कार्ड दिया, मैंने पिन भी दे दिया, मैंने कहा जाओ बेटा 5,000 रुपये मेरे खाते से निकाल के ले आओ, और फिर बाद में मैंने उससे कार्ड नहीं मांगा, तो वो बंदा मेरे कार्ड का मिसयूज भी कर सकता है. एक बार तो मैंने मंगाया था 5,000 रुपये, दूसरी बार वो खुद से भी पैसा निकाल सकता है. इससे क्या साबित हुआ? इफ अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन अथॉरिटी कैन बी मिसयूज. If authority is less than responsibility, then responsibility cannot be fulfilled. Therefore, there should be a good balance between authority and responsibility. तो इसके जो एडवांटेजेस हैं या पॉजिटिव इफेक्ट है वो क्या है? It prevents misuse of authority. It prevents misuse of authority. दूसरा इसका जो इफेक्ट है, इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अच्छा, मैंने कार्ड दिया, मैंने पिन नहीं बताया, वो बंदा गया, पैसा नहीं मिला, तो आएगा तो मैं क्या बोलूंगा उससे? आपने काम नहीं किया, क्या बोलेगा वो? सर आपने पिन ही नहीं दिया मुझे. वेयर आई एम रिस्पॉन्सिबल? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल. तो इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और अगर हमने पिन दे देते और वो पैसा निकाल के नहीं लाता, तो मैं कहता कि मैंने कार्ड दिया, मैंने पिन दिया, येट यू हैव नॉट फुलफिल द ऑर्डर्स, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो इट हेल्प्स इन फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. एंड तीसरा जो गुड इफेक्ट दिया है, इट इंक्रीजेज the confidence of employees. क्यों कॉन्फिडेंस बढ़ाता है? क्योंकि जब हम काम करना चाहते हैं, हम काम कर पाते हैं, सफल होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. अब हमारे पास अथॉरिटी ही नहीं है, बॉस कह रहा है आपको ये काम करना है. जनरली ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखा जाता है, वी हैव एक्सपीरियंस दिस, कि हमसे कहा जा रहा है ये काम आप कर लीजिए, बट वो जो रिसोर्सेस हमको चाहिए वो हमको मिल नहीं रहे हैं. तो आई एम कंपेल्ड, क्या कर सकता हूं मैं? तो कॉन्फ्लिक्ट एराइज होगा, काम पूरा होगा नहीं, और मोरल क्या होगा? एम्प्लॉय का डाउन होगा, कॉन्फिडेंस उसका क्या होगा? डाउन होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिसिप्लिन प्रिंसिपल. व्हाट इज डिसिप्लिन? Discipline is obedience to the rules and regulation